Hello students, I hope you all are fit and fine and आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे for the class 10th. So in this lecture, I'll be discussing polynomials and let's start. So we are well aware of the expression. Let's say we have expression like 2x. So it has only one term. It was called monomial. And if any expression is having two terms, ax plus b, let's say it is having two terms, it was called binomial. Okay. Any expression having three terms, ax square plus bx plus c. So it's having three terms, it was called trinomial. Okay. So basically expressions having different terms along with different powers of variable. Let's say an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 and so on up to a3 x3 a2 x2 plus a1x plus a0. So any expression of the form is called polynomial in variable x. Okay. The power of this variable x, power of x should be whole number, right? It should be whole number starting from 0, 1, 2 and so on. Clear? तो कोई भी expression इस फॉर्म का जिसमें different powers हो x की is called polynomial. ठीक है जी. अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है. Suppose we have polynomial represented by any expression represented by x square plus 2 root x plus 3. 2 root x plus 3. Is this a polynomial? So I'll rewrite it. X square plus 2 x raised to power half plus 3. अब यहाँ पे देखो x raised to power half है. That means half is not whole number. So therefore it is not a polynomial. Okay. This is not a polynomial. Also, let's take another example. Fx equals x plus 1 upon x plus 5. So in this expression, 1 by x can also be written as x plus x raised to power minus 1 plus 5. So here also, basically x raised to power minus 1, that means it is not a whole number. So that is why it is not a polynomial. Okay. I hope आपको polynomial समझ आ गया है कि polynomial क्या होता है. Basically, different expression having different powers of n along with their coefficients is termed as polynomial. ठीक है. Provided the power is a whole number. ठीक है. The degree हम पढ़ेंगे अब degree. So degree of a polynomial. Degree of polynomial means it is the highest power of variable. Highest power of variable. जो भी polynomial में हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके. सो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. डिग्री, टाइप एंड एग्जाम्पल. So let's say if a polynomial has degree 0, then it is called constant polynomial. It is called constant polynomial. Let's say for example हमारे पास f of x. अच्छा, एक और बात, polynomial को हम f of x, g of x कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, मान लो 7 और पाई. यहाँ पे अगर मैं लिखूं x रेज्ड पर 0, हमें पता है x रेज्ड पर 0 इज ऑलवेज 1. सो यहाँ पे बेसिकली x की पावर क्या है? 0. सो दैट इज वाई डिग्री क्या है यहाँ पे? 0. एंड दिस इज टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? इफ डिग्री इज 1, तो इसको बोलेंगे हम, एग्जांपल है हमारा, दिस इज टाइप इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. सो आई सेड
If a degree is 1, then it is called linear polynomial. For example, ax plus b. Okay, ax plus b, right? If degree is 2, then it is called quadratic polynomial. इस टाइप को क्या बोलेंगे? Quadratic polynomial. Let's say ax square plus bx plus c. यहाँ पे सब में कंडीशन हम लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट? आई होप समझ आ रहा है. देन वी हैव degree 3, then this type is called cubic polynomial. Example, any expression of the form ax cube plus bx square plus cx plus d. अगर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलर मैनर में एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e एंड सो ऑन. अगर डिग्री हमारी 5 है तो उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल. क्विंटिक पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल ax5 प्लस bx4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, राइट? आई होप डिग्री के बेसिस पे टाइप आपको समझ आ गई है. ओके, देन हमें एक बात याद रखनी है. दो चीजें आती हैं. एक आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और एक आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है. वी हैव अ पॉलिनोमियल, लेट्स से 2x plus 3, and I replace this x by some constant, let's say 1. So this will be 2 into 1 plus 3. This is equal to 5. So this 5 is value of polynomial at x equals to 1. Okay, this is value of polynomial at x equals to 1. Okay, up, let me take an example, another example. Let's say I have expression 2x plus 1, and if I replace this x by some constant, let's say minus 1 by 2. So 2 times minus 1 by 2 plus 1, this 2 gets cancelled. So you are left with minus 1 plus 1, which is equal to 0. तो यहाँ पे बात याद रखनी है. If for any constant polynomial की वैल्यू 0 आती है, then this value is called zero of polynomial, right? If for any constant the value of polynomial becomes 0, then that constant is called zero of polynomial, right? बात समझ आ गई? अच्छा, एक और बात याद रखनी है. So you have to remember nth डिग्री पॉलिनोमियल. एक बात याद रखनी है हमेशा, जो भी डिग्री होगी nth डिग्री पॉलिनोमियल will have n zeros, right? कितने जीरो होंगे? n zeros. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. ठीक है, क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट. ग्राफिकली भी देख लेते हैं. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमने. सो जीरो का बेसिक मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ बना लो. ठीक है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स. जीरोस का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस. ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस था. अगर ग्राफ जितनी नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, बात हमेशा याद रखनी है, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ हमेशा एक, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी, ये आप याद रखना है. ठीक है, एंड जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक पैराबोला. ठीक है, पैराबोला बनेगा. पैराबोला इज बेसिकली दिस यू शेप.
ठीक है, अब ये इस फॉर्म का भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो, एंड इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो, राइट? ओके, देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल याद रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है, इट इज समवट लाइक दिस। ओके, so this is form of cubic polynomial, right? And also we have to remember that linear polynomial will have at least one zero, maximum of one zero. Quadratic will have maximum of two, and cubic will have maximum of three zeros, right? Okay, any doubt in this? अच्छा, एक और बात याद रखनी है, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कभी भी दे विल नेवर हैव जीरो जीरोस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक हमारे पास एक्सप्रेशन है पैराबोला, लेट्स से दिस इज द पैराबोला, हाउ मेनी जीरोस इट विल हैव? जीरोस ग्राफिकली हम कैसे देखते थे? द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस कट कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? जीरो जीरोस। ओके, बट यहाँ पे याद रखना है क्यूबिक में, क्यूबिक विल नेवर हैव nil zeros. Cubic polynomial will never have nil zeros. मतलब कम से कम एक जीरो तो होगा ही, कभी भी इसके जीरो जीरोस नहीं हो सकते। क्लियर है बात? एनी डाउट इन दिस? चलो जी आगे चलते हैं। नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, zeros and coefficient of polynomial। देखो जी, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, and it is really very important. Let's say we have a polynomial px equals ax square plus bx plus c, a not equal to 0, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। सो हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव एटलीस्ट टू जीरोस। सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोस, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, these are the two zeros of this quadratic polynomial। नाउ रिलेशनशिप क्या याद रखना है? जो सम ऑफ जीरोस होगा, the sum of zeros of polynomial, this will be equal to minus b over a, that is equal to minus the coefficient of x over coefficient of x square, right? जो भी सम होगा हमेशा याद रखना है, it will be minus b over a, and next thing you have to remember is product of zeros, right? You have to remember the product of zeros, that is alpha into beta. Alpha into beta is always equal to c over a, that is equal to constant term over coefficient of x square, right? You have to remember constant term over coefficient of x square। क्लियर है बात? एनी डाउट इन दिस? अच्छा, एक और बात याद रखनी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros, then quadratic polynomial is given by fx equals k times x square minus sum of zeros into x and plus product of zeros। This is the remembering part from this chapter। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। And now we'll be doing few questions based on this, right? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? Let's take an example। कहता है find zeros of polynomial fx equals x square plus 7x plus 10 and
verify relation between zeros and coefficient. Zeros and coefficient, right? तो हमें क्या करना है? We need to find zeros. चलो जी, एक और बात याद स्टार्ट करना है. कहता है for zeros we mean to solve fx equals to 0. So factorize this. X square plus 7x plus 10. What will be the factorization? 10 times 1. This is 10. इसको दो factors में लिखना है such that sum जो है 7 आए. So 2 times 5 is 10 and 2 plus 5 is 7. So this can be written as x square plus, यहाँ पे हमने middle term splitting की है, x कॉमन है फर्स्ट टू टर्म्स में से, x plus 2, और 5 कॉमन है लास्ट टू टर्म्स में से. So you are left with x plus 2 times x plus 5. अब दो चीजों का प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा? ईदर x plus 2 equals to 0 or x plus 5 equals to 0. So from here you get x as minus 2 and x as minus 5. So let this be alpha and this be beta. तो ये हमारे दो जीरोस आ गए. अब हमें क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट चीज वेरीफाई करनी होती है सम ऑफ जीरोस. ठीक है, फाइंड आउट करो सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा आएगा -2 प्लस -5. कितना आ गया? -7. ऑल्सो minus the coefficient of x divided by coefficient of x square. Minus the coefficient of x that is equal to 7. देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 7 अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो ये बेसिकली इक्वल आ गया. सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्लियर है बात? नाउ सेकंड थिंग जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा ले लो. अल्फा था हमारा -2 and beta was -5. So together we get 10. Okay. Also constant term divided by coefficient of x square. Constant term क्या है यहाँ पे? 10. x square का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो ये बेसिकली आ गया. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये क्वेश्चन इस फॉर्म का आपको मिलेगा ही मिलेगा एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर मैनर में हमें एक और क्वेश्चन करना है. कहता है फाइंड जीरोस. जीरोस हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient. Right? Just give it a try. कैसे करेंगे भाई? क्या लिखेंगे? For zeros, so let's say zeros are given by fx equals to 0. तो हमने इसको इक्वेट करना है. So it would be x square minus 15 equals to 0. अब इसको कैसे लिखेंगे? x square minus 15 can be written as root 15 का स्क्वायर. So a square minus b square क्या बनेगा? a plus b into a minus b. And product of two things is 0 if first term is equal to 0 or x minus root 15 equals to 0. So from here you get x as minus root 15 and x as root 15.
सो लेट दिस बी अल्फा एंड दिस बी बीटा। तो क्या प्रूव करना होता है? पहले सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, राइट? तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? -√15 और +√15, प्लस माइनस जीरो आ गया। और क्या लिख सकते हैं हम? ऑल्सो माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट है? नहीं है। तो x का कोफिशिएंट हो गया 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। सो दिस इज 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x square, right? Second thing what we need to do, we need to prove product of zeros, right? Product of zeros, that is alpha times beta. अल्फा है हमारा -√15 इंटू +√15। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा -15। सो व्हाट वी नीड टू डू, दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ऑल्सो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? -15 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। सो दिस इज -15। क्लियर हो गया जी? सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पक्का? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। Let's take another example. We have a polynomial, let's say fx equals to 4x square plus 8x. तो इसमें बोल रहा है find zeros and verify relation between zeros and coefficient. Zeros and coefficient of the polynomial, right? So हमने क्या करना है? For zeros हमें पता है क्या करते हैं हम? For zeros fx equals to 0 कर देना है। So ये बनेगा हमारा 4x square plus 8x equals to 0. What is common? 4x is common to both the terms. So this will be x plus 2. अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? ईदर 4x equals to 0 और x plus 2 equals to 0. So यहाँ से x आ गया 0 और x आ गया -2. So let this be alpha and this be beta. Okay? So हमने क्या प्रूव करना है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पहले फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा which is equal to 0 plus -2. So this will be -2. Also minus the coefficient of x divided by coefficient of x square. So x का coefficient is 8 and x square का coefficient क्या है? 4. So this is -2. So we can say that therefore the sum of zeros is equal to minus the coefficient of x divided by coefficient of x square, right? Second thing we need to prove product of zeros. So product of zeros alpha into beta किसके बराबर होगा? Alpha is 0 and beta is -2. So this is equal to 0. Also constant term divided by coefficient of x square. Constant term, we don't have any constant term, so this is 0. And coefficient of x square is 4. Something upon 0 upon something is 0. So therefore we can say product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x square, right? I hope ये क्वेश्चन क्लियर है और सारे बच्चों को समझ आ गया होगा।
ठीक है जी। चलो, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus बीटा बाय अल्फा। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस अल्फा बीटा आर जीरोस, of given polynomial, therefore sum of zeros किसके बराबर था, हमने क्या सीखा है, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। एंड सेकेंड चीज हमने सीखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू -2। सो नाउ वैल्यू पे आ जाओ। हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। व्हेन अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, राइट। अब इसकी एज सच वैल्यू नहीं होती है, तो वी विल यूज द आइडेंटिटी, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा। Now substitute the value of alpha plus beta and alpha beta. So alpha plus beta is -1 raised to power 2, minus 2 time alpha beta is -2 whole upon -2. So you get 1 plus 4 upon -2. So your correct answer is -5/2. क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलर मैनर में आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। जस्ट कीप लर्निंग, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, नॉट इवन अ सिंगल विल बी लेफ्ट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of 5x square plus 5x plus 1, find the value of alpha square plus beta square. This is the first part, you have to find the value of this, and secondly you have to find the value of alpha raised to power -1 plus beta raised to power -1। ठीक है जी। सो वही बेसिक काम क्या करना है, क्या लिखना है, सिंस अल्फा बीटा आर जीरोस, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, दैट इज -5/5 विच इज इक्वल टू -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, दैट इज c इज 1 एंड a क्या है 5। क्लियर बात। नाउ पहले पार्ट पे आ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी बताओ, व्हाट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये बना -1 का स्क्वायर 2 टाइम्स 1/5, सो दिस इज 1 - 2/5। एलसीएम लेंगे, 5 - 2/5 1 - 2/5 which is equal to 5 - 2/5। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3/5। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या लिखना है, अल्फा रेज टू पावर -1 एंड बीटा रेज टू पावर -1। अल्फा रेज टू पावर -1 होता है 1/अल्फा, बीटा रेज टू पावर -1 होता है 1/बीटा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, सो दिस विल बी बीटा प्लस अल्फा। सो अल्फा प्लस बीटा हमें -1 है, और अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, सो ये 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें, अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बारी पेपर में भी आया हुआ है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा
अगर आप सब रेगुलर पढ़ेंगे तो आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आई ट्राई कि मैक्सिमम वीडियोस आर अवेलेबल टू यू गाइज। सो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx equals ax square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equals to 24, कहता है find the value of k, find the value of k। तो हमारे पास क्या गिवन है, हम क्या लिखेंगे, since alpha beta are zeros therefore we can write alpha plus beta would be minus b by a, that is minus 4 by k, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, c by a, that is 4 by k। बात समझ आ गई। नाउ हमें क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 24। बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। दिस इज इक्वल टू 24। बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4 बाई के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 बाई के इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे इट विल बी 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल्स टू 24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया के स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 8 के इक्वल्स टू 24। के स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी 16 माइनस 8 के इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर। टेक ऑल द टर्म्स टू द राइट साइड, यू विल गेट 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देखो 8 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। और यू कैन राइट 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 3 टू जा 6, सो 6 के फैक्टर बनेंगे 3 और 2, सो 3 के स्क्वायर 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 के कॉमन है, क्या बचेगा के प्लस 1। लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन है, क्या बचेगा के प्लस 1। फैक्टराइज करके आ गया के प्लस 1 टाइम्स 3 के माइनस 2। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, इधर के प्लस 1 हमारा 0 होगा ऑन के इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया आंसर। और यू कैन राइट 3 के माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3 के इक्वल्स टू 2 एंड के इक्वल्स टू 2 बाई 3, राइट। कोई डाउट इसमें, पक्का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। कोई डाउट है इसमें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial sum of whose zeros is 8 and their product is 12, right। अब हमें क्या बता रखा है, सम जो है वो है 8 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12। सो अभी जस्ट रिकॉल, मैंने क्या बताया था, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ये 1 और 2 मार्क के लिए आ सकता है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k टाइम्स x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, right? So this is the equation. So now just substitute, we will get the polynomial as k times x square minus
sum of zeros, that is 8 given है, plus product of zeros. Product of zeros 7. So sorry, product of zeros is 12. So therefore required polynomial is, हमेशा आपने क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में है इसको आंसर लिखना है. So therefore required polynomial is x square minus 8x plus 12. Right? Clear है जी? This is the final answer. So thanks for the beautiful session. ठीक है, I hope आप लोगों को समझ आया होगा, and I'll keep continuing this making videos on class 10th mathematics. You can share if you find it uh, valuable, and you can just stay connected. Thank you so much.